Hello class 10 students, how are you guys? I welcome you to this second lecture of mathematics in which we are going to talk about polynomial. In the first lecture we talked about polynomial. We are going to do the problem solving of polynomial. But before we begin, I must tell you that I hope you guys are receiving your assignment, receiving your video lectures, receiving your work. At the same time, we have been receiving many of the assignment and lecture notes from many students, but still there are few students who are still not responding with their assignment. We are putting the deadlines as well, so you guys have to ensure that you follow all the video lectures, all the sheets we are sending, because by next week, if you cross the deadline, if you are not submitting your work, we'll start mentioning your name in the lecture if you don't write us back, if you don't. At the same time, we have already allocated mentor to all of you. I hope you all are having your mentor. At the same time, class 10th, this is very important phase of you, one of the important phase of your academic life, because class 10th is one of the crossroad of your academic life. Here you choose subject. At the same time, just after 10th, you are at a point where you choose the discipline you want to pursue in your academic life. At the same time, in this year, you are going, in this session, you are going to appear in the two most important public exam of your life. One is national talent search exam and the other is your board examination. So you cannot be casual about this academic year. This is one of the it is going to be one of the defining point of your academic and career life. At the same time, as you know, class 10th board exam score gets stuck in your every CVs in here. So you have to be very systematic and very consistent. As I have told you, consistency is the mother of mastery, as I have already talked to you in my mentorship lecture. If you guys haven't followed the mentorship video lecture, please go through the mentorship lecture and listen to every point I'm raising and make a note and try to follow that, because if you build your day, then your week would be built, and then your month would be built, and then your whole academic year would be built, and the whole life would be built on that world class day to world class year. So this is how it goes. So as I repeatedly says, consistency is the mother of mastery. So you have to understand, it is not important what you do once in a week or a fortnight or a month or a year. It what you do every single day, that is going to define you, that is going to define your success, that is going to define your quality. So I request you all, you have to be very consistent on your everyday. We are sending you all the lectures, video lectures, sheets. Please follow that, raise questions, ask questions. You have your allocated mentor. At the same time, those who are in touch with other subject teachers also, you can get in touch with them. You can get in touch with me, you can get in touch with Dr. Bhavna. There are many counselors, other like Mr. Jazib, Miss Shalini. So you have so many people lined up to help you guys. So you have to be very clear that no, I need to achieve this. So you have to be damn serious about it. Okay, now coming back to the mathematics lecture. So in this, we have already talked about the theoretical part of polynomial. So we'll just first take quick revision and then we'll do the problem solving. So let's begin our revision. So in the first slide, what you can see is the definition of polynomial. As you know, I'll just revise it quickly. You can later on take the screenshot and later on can read what exactly is written. It's like we have already taken care of the things in the last class, but at the same time, as you know, what is polynomial? Polynomial is a special algebraic expression. What is the speciality? The speciality is that the power of the variable in this algebraic expression has to be whole number, and the highest power defines the degree of the polynomial. As you can see, we have constant polynomial, you have zero polynomial, you have linear polynomial, you have quadratic polynomial, you have biquadratic, cubic. I'll just squeeze down my screen so that you can have a look, take a screenshot, you can read later, you can keep it as a note, you can make the note, you can see that, right? Now next point. Now the third point we are talking here is the value of the polynomial. I have already told you
The value is the output, and you cannot tell me what is the output unless I tell you the input. So if I say x is equal to 1 is the input, then you put 1 in the expression and then you get the output. So value of polynomial at x is equal to 1 is that way. Similarly, if I say the value of polynomial at x is equal to alpha, it means you have to plug alpha in that expression, calculate and find the output. So you understand value of polynomial. Then we talked about zeros of polynomial. It means the output is 0 now. The output is 0. What inputs make the output 0? That is what is all about zeros. And as I have already discussed that let's say if you have a 4-degree polynomial, then the maximum number of zeros could be 4. It cannot exceed 4, and it is not necessarily going to be 4. It could be 4, it could be less than 4. It could be 2, it could be 3, it could be 0, it could be 1. When it would be 2, when it would be 4, we'll be discussing that in a greater detail when we go into the higher class or in a higher part of advanced mathematics. Okay, now next slide. As you know, we also talked about the quadratic polynomial. We used the factor theorem to explain that sum of zeros and product of zeros. The sum of zeros was minus b by a and product of 0 was c by a. As you know, we used through a factor theorem. Same way we did the same thing for cubic, and you observe the pattern that okay, the sum of roots alpha plus beta plus gamma, sum of zeros is going to be minus b by a, and alpha beta, alpha gamma and beta gamma is going to be c by a plus c by a. So alternate plus minus plus, and then product is going to be alpha beta gamma is going to be minus d by a. Now when you talk about the biquadratic, the pattern will follow. Now you have 4 zeros now, alpha plus beta plus gamma plus delta, which will become minus b by a. And if you take pair alpha beta, alpha gamma, alpha delta, beta gamma, beta delta, gamma delta, ऐसे करके you will have 6 pairs. So सारे pairs के जो sum होंगे that would be c by a. Now minus b by a के बाद c by a. Now you will take the triplet alpha beta gamma, alpha beta delta, alpha gamma delta, beta gamma delta. So you will have 4 triplets. So that sum would be equal to minus d by a. Alternate plus minus I can see, and the product alpha into beta into gamma into delta is going to be e by a. Again the concept of minus plus minus, the follow the same way you can predict for 5 degree, for 6 degree, 7 degree and so on. Now we talk about as you know, if fx is a polynomial and gx is a non-zero polynomial, it means you are dividing fx by gx. So gx is a non-zero polynomial. Then there exists 2 polynomials qx and rx such that fx is equal to gx into qx plus rx, where rx could be 0 or it could be some other polynomial, and degree of rx should be less than or equal to less than degree of gx. What exactly it is, I am just explain you. अगर आपसे मैं बात करूं, जैसे देखिए कि अगर ये आप डिवाइड करते हो, राइट, आप स्टैंडर्ड तरीके से बचपन से डिवाइड करते हो, इस पोर्शन में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड. क्या कहते हैं इसे हम, डिविडेंड. सो आई विल जस्ट राइट डिविडेंड. और इस पोर्शन में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर. क्या कहते हैं, डिवाइजर. आई विल जस्ट राइट डिवाइज. और जो यहां पे आता है उसे क्या कहते हैं, कोशेंट. और जब आप डिवाइड करके नीचे जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर. ओके. नाउ अगर क्या कहते हैं, आप बचपन से जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यही कहता है और आप बचपन से भी जानते हो, राइट. तो ये कह रहा है कि अगर आप fx को, दैट इज डिविडेंड को, gx से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, gx से, सो दिस क्वालिफाई फॉर डिविडेंड and this qualify for divisor. So what I can say that gx will come here, you will get the expression fx here, you will get some quotient qx here, and you will get some remainder rx here. So this is what he want to say, that okay, this is how the division algorithm will happen. Now as you know, the degree of gx and the degree of rx, the degree of rx will always be less than the degree of gx. आपको पता है
जैसे आप नंबर में जानते हो, जब आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 से लेकर 6 तक कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। सिमिलरली अगर आप gx से fx को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो डेफिनेटली gx की डिग्री से कम हो सकता है। अगर gx 3 डिग्री है, लेट्स से ये 3 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है 0 डिग्री। तो इसमें कोई भी डिग्री ये हो सकता है। सिमिलरली कोशेंट और gx और qx की जो डिग्री का सम है वो fx की डिग्री के बराबर होगा। तो बस यही बात है, डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बस यही चीज़ें चेक करनी है जो हमने ऑलरेडी जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे तो इसकी बात हमने ऑलरेडी की थी। तो आइए चलते हैं, आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व में आपको समझना है कि प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या है। प्रॉब्लम सॉल्व समझ लो, आप एक रिवर बह रही है बीच में, ठीक है, और इस बैंक पे आपका है इंफॉर्मेशन गिवन और इस बैंक पे है आपका इंफॉर्मेशन आस्क्ड। ये हो गया इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ डेटा, और ये है इंफॉर्मेशन आस्क्ड। और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इन दोनों बैंक के बीच में ब्रिज बनाने का। तो क्या आप ब्रिज बना पा रहे हो? अगर आप ब्रिज बना पा रहे हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हो। अगर आप ब्रिज नहीं बना पा रहे हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ना क्वेश्चन इज कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो, हाउ डू यू मेक द ब्रिज। तो आप ब्रिज सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने को कहा जाता है, वो बहुत ही लेवल 1 क्वेश्चन होते हैं जिसमें लैंग्वेज को ही फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर। दूसरा होता है कि क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं और क्वेश्चन ही आपको हिंट कर रहा होता है आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज या लॉजिक को यूज करते हुए, ठीक है। तो नॉलेज और लॉजिक पहले की आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ब्रिज बना पाओगे। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन आस्क के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक आप नहीं खोज पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है, द वन हु कैन फाइंड द लिंक एंड बिल्ड द ब्रिज, वन हु कैन फाइंड द लिंक एंड बिल्ड द ब्रिज, कनेक्टिंग द डॉट्स। आप डॉट को कनेक्ट करना जानते हो या नहीं जानते हो। आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो सवाल पे बहुत ध्यान दें कि सवाल क्या कह रहा है। मैं आपको अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए असाइनमेंट है। क्या है ये? आपके असाइनमेंट। सो वंस यू फिनिश दिस लेक्चर, वॉचिंग लेक्चर, आपको ये सारे, मैंने 15 क्वेश्चंस रखे हैं इस लेक्चर में, उस 15 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन हमें भेजना है। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि अगर आप इसका सॉल्यूशन हमें नहीं भेजेंगे तो आई विल मेंशन योर नेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं वो, जैसे कि आज हो गया 31 मार्च, तो मतलब आपको मैं 2 दिन का मौका देता हूँ। बाय 2 अप्रैल midnight, दैट इज द डेडलाइन, एवरीवन शुड बी एबल टू सेंड मी द असाइनमेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल सेकंड लेक्चर। अगर आप नहीं भेजोगे, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट एंड आई विल talk to your parents, and also I'll mention your name in the channel in the next lecture. So be careful. At the same time, we have been uploading lectures of Mathemagic, which talks about the beauty of mathematics. Do watch that and do solve that quiz as well. At the same time, other than that, you have other subjects going, and we don't want to hear anything that you are not following the lectures. Mentor would be talking to you, mentor would be assessing you, mentor would be looking into it, and I will be personally looking into each mentor's remark and report. So please be mindful in your approach. It's not a vacation going on. You are in a lockdown state, doesn't mean that you have to enjoy or you have to get scared or whatever it is. You have to spend time for your academic. You have to organize your day. As I have already told you in my mentoring session, how to build your day. Why you have to get up early, what you have to do just after that, you have to sweat, then you have to do journal, then you have to learn something, then you have to do strategic time blocking, you have to prioritize things, and then you have to think of over delivery. So these are the concepts which we talked in the mentorship session. So please watch that again if you have forgotten, and maintain note of that also, because that is going to help you out. Now, as you can see on the slide, you have a question. He is asking you to find a quadratic polynomial. So it's very clear what exactly he wants you to do. He wants you
टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या दे रखा है आपको? ऑलरेडी सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? सम एंड प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आपको पता है अल्फा और बीटा आपके जीरोज हैं। अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो आपको पता है ये हो जाता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आप के को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम, जिसको मैं एस एक्स लिखूंगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? पी। तो एस हो गया अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ जीरोज। क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज। और पी क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है। आपको बस एक पॉलिनोमियल लिख देना है। तो पी एक्स वुड बी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। सम क्या दे रखा है? सम दे रखा है -5 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 3। तो s इज -5 एंड p इज 3। तो माइनस एस क्या हो जाएगा? माइनस 5x प्लस 3, क्योंकि माइनस एस एक्स करना है और प्लस p डालना है। तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 भी बोल सकते हैं, और क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ऐसे आप के पी वैल्यू चेंज करके ऐसे इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, बट दिस थिंग विल रिमेन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यू कैन कीप चेंजिंग द कोफिशिएंट विथ multiplying with 1 2 3 4 whatever you fail. So you can say x square plus 5x plus 3 is one of the quadratic polynomials. So they have asked you find a quadratic polynomial. अगर आपसे कोई जनरल तरीके से बोले तो आप बोलिए k into x square plus 5x plus 3. Coming to the second question, as you can see, you have to verify. You have already, they have given alpha, beta and gamma, and they have given you the cubic polynomial, and they are saying that alpha, beta, gamma are the zeros. तो आपको क्या करना होगा? P ऑफ अल्फा, P ऑफ बीटा और P ऑफ गामा डालना होगा, और वो चेक करना होगा कि क्या इसको डालने से ज़ीरो हो रहा है। अगर डालने से ज़ीरो हो रहा है तो यस दे आर द जीरोज। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू वेरीफाई। तो अगर मैं एक अल्फ़ा हाफ है तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 हाफ क्यूब प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 5 हाफ प्लस 2। ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये ज़ीरो है कि नहीं। आप असाइनमेंट जब सॉल्व करेंगे तो आप दिखाएंगे। बीटा में सेम आप लिखोगे 2 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। प्लीज़ डू वेरीफाई कि ये ज़ीरो है कि नहीं। एज आई कैन सी इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो। एंड 2 माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 2 स्क्वायर minus 5 minus 2 plus 2 again. These all three will turn out to be 0, which verifies that they are the zeros of this cubic polynomial. The second thing you have to verify is alpha plus beta plus gamma is equal to what? Minus b by a. So you know what is alpha, beta, gamma. So you just have to put half 1 minus 2 is equal to minus b क्या है? 1 है और a क्या है? 2. So you just have to verify it is true or not. Same way you have to verify for alpha beta, alpha gamma plus beta gamma. What you have to do, that would be equal to c by a. So c is minus 5 by 2, and then you have to put half into 1 plus half into minus 2 plus 1 into minus 2. You just have to verify, is it equal to minus 5 into? You will be able to verify that. And the last one, alpha into beta into gamma is equal to minus d by a, which makes it alpha beta gamma is equal to minus 2 by 2. और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आपको पता है हाफ है, 1 है, minus 2 is equal to minus 1. Yes, so you have to verify that. This is as simple, right? Moving to the third question. As you can see, you have 5x cube minus 13x square plus 21x minus 14 divided by, you have to divide and verify the division algorithm. I won't solve it, I'll just show you. x square minus 2x plus 3 आपको यहाँ पे डिवाइज़र पे रखना है। 5x cube minus 13x square प्लस 21x माइनस 14 आपको अंदर डिविडेंड में रखना है, और यहाँ पे आपको डिवाइड करना शुरू कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं
कुछ स्टेप्स आपको दिखा देता हूँ. आपको 5x³ को रिमूव करना होगा, तो उसके लिए आपको 5x से मल्टीप्लाई करना होगा. तो आपने 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5x³ और ये हो गया -10x², और ये हो गया 5x इंटू 3 15x. फिर आप फर्दर इससे कैंसिल कर सकते हो. -13 -10, दैट विल मेक इट 10x² -13, दैट इज -3x². 21x minus 15x would be 6x minus 14. Again, you just have to multiply with -3. You will get -3x minus 6x, sorry, plus 6x and -9. So they will get out, they will get out. You will be left with -5. So that becomes your -5 becomes your remainder. -5 is your remainder. And then you just have to show that x² minus 2x plus 3 into 5x minus 3 प्लस -5 वुड बी इक्वल टू दिस. सो ये आप एक बार वेरीफाई कर लेना, डिवाइड करके आप ये एल्गोरिथम दिखा देना. फोर्थ क्वेश्चन, यू सी दे हैव गिवन यू दिस a 4-degree polynomial. You can see, right? It's a 4-degree polynomial and they have given you 2 zeros already. Now you have to verify that whether the other zeros can be found or not found, right? So सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है x माइनस, जस्ट अ सेक, आपको पता है कि -√2 and -√2 are the zeros, means these two are the factor. If I do a plus b into a minus b, what is a plus b into a minus b? A square minus b square. So I can say x² minus 2. So I can say x² minus 2 is a factor of this. So I say x² minus 2 can easily divide it. So I'll just do x² minus 2, 2x to the power 4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2. Just divide it. The remainder will gets out. You will get a quadratic polynomial here. What you have to do? You have to factorize it to solve that. If you want me, I'll just solve this question. If you want me to solve it, I'll just show you how to solve. So you know, I just need to multiply with 2x². So I'll get rid of 2x to the power 4 and this will become -4x². So this goes off, this -3x³ comes out, -3, this becomes x². Then 6x minus 2. Now I need -3x, I'll put -3x. So I'll get -3x³ minus 6x minus 6x. So now this gets out, this and this gets out. I just got x² minus 2. So I'll just write +1. So this goes off. So I am just left with 2x² minus 3x minus 1 plus 1. अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा. 2x² minus 2x minus x plus 1. I'll just take 2x common, x minus 1. I'll take -1 common, x minus 1. So what's the factor? 2x minus 1 into x minus 1. So these two can be factored and I can say 2x minus 1 अगर 0 है और x minus 1 0 है तो x क्या होगा 1 और x क्या होगा half. So the zeros are 1, half and √2 and -√2. These are the zeros, as you can easily see that. Okay. Fifth question, you can see alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. आपके quadratic polynomial में kx² plus 4x plus 4 है और alpha square plus beta square is equal to 24 है. तो आपको k की वैल्यू देनी है. आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है. क्या इक्वेशन दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24. दिस इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन. और आपको पॉलिनोमियल दे रखा है fx इज इक्वल टू दिस. ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसमें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की इन्फॉर्मेशन आप डिड्यूस कर सकते हैं -4/k एंड अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हैं 4/k. और इस इक्वेशन पे हम काम कर सकते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24. और मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ से प्लग इन कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा -4/k का होल स्क्वायर -2 एंड अल्फा बीटा को मैं लिख सकता हूँ 4/k. Now I can solve this quadratic equation in k
एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो जैसे ये बन जाएगा 16/k² माइनस 8/k और 24। आप देख सकते हो तीनों जो टर्म्स है उसमें 8 कॉमन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2/k² माइनस 1/k3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 माइनस k इज इक्वल टू 3k²। आप इसको फर्दर लिख सकते हो 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हो? आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ आई हैव गिवन यू इनफ एंड आप इसको लिख सकते हो k प्लस 1 और इसको कॉमन लेके माइनस 2 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1। तो आप कह सकते हो कि k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल जाएगा? k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 2/3। आई वॉन्ट अ वेरी क्लीन एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। जब आपको देखोगे आई एम जस्ट गिविंग यू कि कैसे सॉल्व करना है, जस्ट द इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सेम कहानी है। अल्फा बीटा दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, k एक कांस्टेंट है जो आपको निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी। नाउ आई विल नॉट टेल यू, आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हो। बताओ कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। आई हैव गिवन यू इनफ हिंट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आगे अभी तक जो 6 सवाल थे वो सब्जेक्टिव थे। आई वांट डिटेल्ड आंसर एट द सेम टाइम। आई एम रिपीटिंग, एमसीक्यू में भी मुझे डिटेल्ड आंसर चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी आप टिक करके भेज रहे हो, डिटेल्ड आंसर चाहिए एमसीक्यू के सिंगल आंसर वाले में। अभी एमसीक्यू में एक सिंगल आंसर होगा, आगे मल्टीपल आंसर भी होगा। देखिए पहले सिंगल आंसर में क्या करना है। आपको ऑलरेडी अल्फा बीटा दे रखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप सिंप्लीफाई कर लो पहले। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस पी माइनस सी। दिस वेरी इजी टू से। नाउ आपको निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। आप इसको जब खोलोगे मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 1। तो दिस इज सम ऑफ रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। आप वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको आपको इक्वल टू 0 करके c की वैल्यू निकालनी होगी। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिएगा, एमसीक्यू अगेन सिंगल आंसर है। इसमें आपको दे रखा है एक रूट 5 प्लस रूट 2, एक 0 5 प्लस रूट 2 दे रखा है और दूसरा 5 माइनस रूट 2 दे रखा है। तो आपको पता है अल्फा आपका 5 प्लस रूट 2 है और बीटा आपका 5 माइनस रूट 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? आपको आता है ऐड करना, रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2 विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या हो गया? 25 माइनस 2 दैट इज 23। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्रोडक्ट। अब एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर छोड़ दो, सम क्या है? सम है हमारा 10, तो माइनस 10x और प्रोडक्ट क्या है 23। तो विच ऑप्शन? दिस कैनॉट बी, दिस कैनॉट बी, दिस कैनॉट बी। यहाँ पे मिसप्रिंट है, 21 नहीं होगा, यहाँ पे 23 आप लिख लोगे। अब देखिए जो 10वां सवाल है उसमें आप देखिए एमसीक्यू तो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सिंगल आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल आंसर। मतलब कुछ ऐसे भी एमसीक्यू होते हैं जो डिफरेंट वेरिएशन के होते हैं जिसमें आपके ऑप्शंस एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो उसको देखते हैं। IIT JEE के एडवांस वाले सेक्शन में ये इस टाइप के फॉर्मेट आते हैं जहाँ पे आपके मोर देन वन चॉइस भी सही होते हैं। अब क्या रखा है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आप पॉलिनोमियल की तरह ही सोचिए। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसको पॉलिनोमियल की तरह सोच सकते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप ऐसे समझ लो। तो क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a? यस। क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा c बाई a? यस। क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे इवेल्युएट करेगा? मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बता दूंगा। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर वैल्यू पुट करके चेक कीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। और अगर मैं क्या कहते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए भी मैं कहूँगा आपको सीधे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो?
अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये सारे आइडेंटिटीज आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए, ऐसे रटे होने चाहिए कि रात को 2 बजे भी आपसे कोई पूछे बीच नींद में उठा के तो भी आप आंसर कर सको। और अल्फा प्लस बीटा को तो आप ऐसे सामों को आराम से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, क्योंकि 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा को ये कर सकते हैं। आप सोचिए ऐसा क्यों मैंने कहा और इसको सॉल्व कीजिए। 11वां सवाल देखिए, अगेन ये मल्टीपल आंसर है, इसमें भी हमें बस आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम ये सीख सकते हैं बोथ द जीरोज ऑफ दिस आर नेगेटिव, मतलब अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है तो आपको पता है सम भी नेगेटिव होगा, और आपको पता है प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज आप देखिए, अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा लेट से माइनस बी बाई ए, और मैं कहूं अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा? बताइए मैंने ऐसा क्यों लिखा, आपको पता है आई होप। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 4ab ये हो जाएगा। आप गौर से देखिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल, ये क्या हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4c बाई ए। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, अज्यूमिंग अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, ये होगा। अब मैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दूँ तो अल्फा क्या, 2 अल्फा वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। तो अल्फा क्या हो जाएगा अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप देख रहे हो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो अगर आपके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो वो रियल नंबर तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तभी आप अंडर रूट की वैल्यू निकाल पाओगे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको पता है कि अल्फा भी निगेटिव है बीटा भी निगेटिव है, तो सम क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमें पता है माइनस बी बाई ए क्या है, निगेटिव, तो बी बाई ए क्या होगा, बी बाई ए क्या होगा, पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन भी सही है। हमें पता है कि अल्फा और बीटा निगेटिव है, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो सी बाई ए क्या होगा, पॉजिटिव। सी बाई ए पॉजिटिव है, इसका मतलब सी और ए या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों निगेटिव हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। आप इसको ज़रूर संभल के सोच के लिखना। मैंने एक नई चीज़ बताई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसको फिर से सोचना मैंने एग्जैक्टली क्या कहा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपके आराम से चीज़ें हैंडल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि यहाँ पे लिख रखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इंटू सी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ना a तो 0 हो ही नहीं सकता और c भी 0 नहीं है। अब क्या कह रहा है कि आपको बताना है कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, रूट जीरोस बता रहा है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो सम क्या हो गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, विच मेक्स इट अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट क्या हो गया 1 बाई अल्फा बीटा। क्वेश्चन के ओरिजिनल इसमें आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए। तो ये चीज़ हम ये इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए। तो क्या बन गया माइनस बी बाई सी, और प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ए बाई 1 बाई अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, तो क्या हो गया ए बाई सी। तो अगर मैं आपको इसको पॉलिनोमियल की तरह या इक्वेशन की तरह लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम माइनस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इज इक्वल टू 0। और मैं अगर इसको क्रॉस कर दूँ तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए
तो मैं कह सकता हूँ दिस इज अ राइट चॉइस। सिमिलरली आपको बी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। बी ऑप्शन के लिए आपको पता है, लेट मी शो यू अगेन, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए क्या कहते हैं बी ऑप्शन के लिए, देखिए सम क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, तो ये क्या हो गया बी बाई ए। और प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, विच मीन्स अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट अभी हुआ सी बाई ए, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं बी भी सही है। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आप निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज सी बाई ए का होल स्क्वायर। एंड नाउ यू नो हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशन। सिमिलरली जब आपका रूट्स टू अल्फा टू बीटा दे रखा है तो आप डी ऑप्शन के लिए भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपको सॉल्व करके हमें भेजने हैं। 13 है मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप में ये IIT JEE में ये फॉर्मेट यूज होता है एडवांस के पेपर में। जैसे में आपको एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया रहता है, कॉलम 1 के चीज़ों को आप कॉलम 2 से मल्टीपल ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो मैच द कॉलम देखते होंगे एक के साथ एक के जाता है, लेकिन ये 1 to many रिलेशनशिप फॉलो करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और राइट हैंड साइड में आपको जीरोस दे रखा है और आपको कंपेयर करना है। तो आपको पता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर को का जीरोस क्या होगा, अगर आप इक्वेट कर देंगे जीरो को तो आपको पता है एक्स होगा प्लस माइनस 2। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन का आंसर होगा क्यू और आर। तो यू कैन कनेक्ट ए विद क्यू और आर। सिमिलरली बी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, आप इसको इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस टू, तो आप कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू 2 होगा या एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। 0 कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप कह सकते हो बी जाएगा 2 के साथ, दैट इज आर। ऐसे करके आपको फर्दर सॉल्व करने हैं, तो इसको सॉल्व करके आप हमें आंसर भेजेंगे। सारों का मुझे डिटेल्ड आंसर चाहिए, सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे सबका आंसर चाहिए कि आप वो सारे ऑप्शंस में कैसे आए। ये वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको सीधे रिमाइंडर निकालना है। आप डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर सकते हैं, 4 डिवीजन है, आप चारों डिवीजन को सॉल्व करके आंसर निकाल के हमें भेजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो है थोड़ा ट्रिकी है। क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, तो आपको सारे ऑप्शंस मैच करने होंगे। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब डिग्री 0 होगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंटेन्स अ टर्म ऑफ डिग्री, 2 भी कंटेन करता है, लीनियर भी कंटेन करता है, और क्या कांस्टेंट भी कंटेन करता है। और लीनियर पॉलिनोमियल इज अ डिग्री 0। तो बच्चों ये आपके जो 15 सवाल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करने हैं, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन भेजने हैं। 2 अप्रैल मिडनाइट इज द डेडलाइन। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू सेंड अस दिस एट द सेम टाइम। आप अपने दिन को अच्छे से हैंडल करो। जो मैंने आपको जितनी भी बात बताई थी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, जर्नल लिखना है, आपको कुछ लर्न करना है, कुछ स्किल सीखनी है, कुछ पढ़ाई, कुछ रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी है कि क्या चीज़ पे काम करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत फ्लोट हो रहे हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर आप ऑर्गेनाइज करके टाइम ब्लॉक नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एट द सेम टाइम। उसके बाद आपको हमेशा ओवर डिलीवरी की सोचनी है। ओवर डिलीवरी का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं आपने देखा है तो फिर से जाइए और मेंटरिंग की वो वीडियो देखिए जिसमें बिल्ड योर डे के टाइटल में है कि आपको अपना दिन कैसे बिल्ड करना है। ओवर डिलीवरी मतलब जैसे मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस भेजे हैं, इसके साथ आप मुझे अपना नोट्स भी भेज सकते हैं, उसके साथ आप NCERT के क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, उसके साथ आप NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन भी करना है, जहाँ पे आपको सोचना है कि आप अपना दिन ठीक से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपने दिनचर्या के हिसाब से चल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो, और कोई भी दिक्कत हो यू जस्ट कॉन्टैक्ट योर मेंटर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस and we'll be posting you more questions and more videos. And do watch mathematics series where we have already streamed 2 lectures. More lectures will be coming. Enjoy that, solve that, and love mathematics, fall in love with the subject, and be very clear about your board exam and NTS exam. All the best. Thank you. Bye bye.